Hello friends, today we'll talk about the storage lipid. Actually, in the previous lecture we have discussed a lot about the fatty acids, their structure and what actually fatty acids are. So by going through a quick revision from our previous lectures, in the previous lecture I have discussed with you about the basic structural unit of storage lipid, that is fatty acid. Storage lipid is the first category that I have told you about. The lipid, that it's the first category, and after it the structural lipid is also there, which are present in the cell membrane. Also it can perform, the lipids can perform the function of an electron carrier, light absorbing pigment, chaperone, etc., etc., on the basis of their chemistry. Now fatty acids are the structural unit of storage lipid, and they can be branched and unbranched, they can be saturated and unsaturated. Also their oxidation is highly exergonic. The double bond, if present in the structure, then it is always in the cis pattern, and the double bond is not present continuously, that is they are not conjugated, that is double bond, single bond, double bond, single bond. This is not the pattern actually present within their structure. Actually they are separated by a methylene group. Like अगर कोई double bond है, उसके बाद एक methylene group होगा CH2, फिर एक double bond होगा in case of polyunsaturated fatty acids में. उसके अलावा हमने nomenclature की बात करी थी कि जब the number of carbon present in the fatty acid chain is separated with the help of colon via number of double bond, and that position of and the position of double bond is super present, it can be written as superscript to delta. ये हमने डिस्कस किया था पिछले दोनों लेक्चर्स में. उसके अलावा मैंने एसेंशियल फैटी एसिड की भी बात करी थी, जो कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं मेनली, और जिनको कि नाम अलग से कुछ उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए ओमेगा फैटी एसिड नाम दिया गया था, और उसमें मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया था, जो कि कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे. आज चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल कैटेगरी ऑफ स्टोरेज लिपिड व्हेन इट कंबाइंस विद सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन उसके बाद क्या क्या ये स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं और किस तरह से इनकी कैटेगरी बनती है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. देखिए ग्लिसरॉल, ये CH2OH CHOH CH2OH, this is the polar compound which is highly soluble in water. When it combines with the fatty acid with the removal of an water molecule, it form एस्टर लिंकेज. तो ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल कहने का मतलब ये है कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल से एस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं विद द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, और एक कंपाउंड बनाते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. अब ट्राई कहाँ से आया, एसाइल क्यों है, ग्लिसरॉल तो है ही, समझ में आ ही गया होगा. ट्राई इसलिए आया क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पे ग्लिसरॉल के पास 3 OH मोइटीज हैं, जहाँ पे कि 3 फैटी एसिड्स आके जुड़ सकते हैं. So when these 3 fatty acids come to glycerol, and when they combine to each OH group with the removal of water and with the ester linkage, then it comes triacyl. Now what is acyl over here? Acyl group actually देखने में कुछ इस तरह से होता है कि एक कार्बन है जिसमें कि एक ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन अटैच है with the help of double bond. उसके अलावा एक R, कोई भी R कैन बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अल्काइल असाइल के केस में, बट हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग फैटी एसिड चेन होंगी यहाँ पे. तो R हो और उसके अलावा एक फ्री डबल बॉन्ड हो जो कि अपना दूसरा किसी मोइटी से जुड़ पाए, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एसाइल ग्रुप. तो अब यहाँ से अगर आप देखेंगे इतने स्ट्रक्चर को केवल, तो ये कुछ एसाइल सा ही दिख रहा है हमें कि एसाइल बिल्कुल एज इट इज, और ये हमारा फ्री बॉन्ड था जो कि एस्टर लिंकेज में हमारा इन्वॉल्व हो गया. तो दिस एक्चुअली दैट्स व्हाई द टर्म जो दिया गया है बहुत टेक्निकल टर्म है कि ट्राई एसाइल, और इतना पार्ट क्योंकि ग्लिसरॉल से आया है तो उसको हम एज इट इज ग्लिसरॉल लिखते हैं. तो इट इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल. ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर दैट ये 3 फैटी एसिड्स आते हैं. 3 फैटी एसिड्स जो है दे कैन बी ऑफ सिमिलर टाइप. लाइक हो सकता है यहाँ पे पार्मेटिक एसिड हो, यहाँ भी पार्मेटिक एसिड हो, और यहाँ भी जो फैटी एसिड आया वो भी पार्मेटिक एसिड हो, या हो सकता है ओलेइक एसिड हो, ओलेइक ओलेइक, या कोई अनसैचुरेटेड भी सेम टाइप का आ सकता है. तो जब ये सेम टाइप का आता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर आर आर, तो ये कैटेगरी बनाता है सिंपल
ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि यहाँ पे सेम ही बने आर आर आर। लेकिन जब अलग अलग टाइप के मिक्स टाइप ऑफ फैटी एसिड कम टू फॉर्म ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, देन कुछ इस तरह से, अगर मान लीजिए ये एक तरह का, ये दो या तीन, तो ये कैटेगरी बनती है मिक्स्ड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। 1 2 3, ओके। तो दो तरह की ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो सकते हैं, मिक्स्ड, सिंपल एंड मिक्स्ड। बट यूजुअली जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं वो मिक्स टाइप के ही पाए जाते हैं। सिंपल भी ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट हाँ, ज़्यादा कॉमनली दे आर ऑफ मिक्स्ड टाइप। नाउ मूविंग टूवर्ड द एनर्जी, जो कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, दे आर हाईली एक्सोगोनिक, हाईली एक्सोगोनिक। तो मेनली अगर हम बात करें जो एनर्जी रिलीज होता है इन ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या फैटी एसिड या लिपिड के ऑक्सीडेशन से, तो मेनली इट इज द 95% ऑफ एनर्जी comes with the oxidation of this part. Again ये फैटी एसिड वाला ही पार्ट है, बाकी जो है वो 5% यहाँ से आता है थोड़ा बहुत लिपिड का। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो कीप दिस थिंग, कभी हो सकता है किसी कंपटीशन में भी आपके सामने एग्जाम में आ जाए कि विच पार्ट इज एक्चुअली गिविंग द मेजर पार्ट ऑफ एनर्जी। सो बताइएगा कि ये फैटी एसिड जो पार्ट होता है वो हमारा ज़्यादा एनर्जी देता है, उसके ऑक्सीडेशन से हमें बहुत मैक्सिमम अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है, जबकि काफ़ी कम अमाउंट में हमें रिमेनिंग पार्ट वाला देता है। नाउ एग्जैक्टली, अब एनर्जी की बात चली है तो ये भी बात कर लेते कि वाई ये दिस लिपिड, बिकॉज मेन तो हमने सुना है कि भाई मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी और क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपका ग्लूकोज होता है। एग्जैक्टली, इट इज ग्लूकोज एंड इट विल रिमेन ऑलवेज ग्लूकोज, क्योंकि इसका बहुत ही इजीली ऑक्सीडेशन ज़्यादा क्विक होता है, इजी टू ऑक्सीडाइज है ये। बट वेन एवर इफ अ पर्सन इज गोइंग थ्रू फास्टिंग, सपोज कि ये कोई अनशन पे ही बैठ गया, तब क्या होगा, कुछ खा ही नहीं रहा है भाई, ग्लूकोज की कोई सारा कुछ कमी हो गई है, तब क्या होता है हमारी बॉडी में सिग्नल आते हैं कि भाई अब जो भी स्टोरेज लिपिड है जहाँ जहाँ है उसको तोड़ा जाए और उससे फिर एनर्जी ली जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा एंजाइम है जिसका कि नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम होता है, ये बड़ा ही काम का एंजाइम है हमारे अंदर। ये मेनली रिलीज होता है पैंक्रिया से, थोड़ा बहुत हमारे लिंगुअल मतलब सलाइवा में भी पाया जाता है, और गैस्ट्रिक जूस में से भी पाया जाता है। बट मेन जो होता है ना वो ये वाला पैंक्रिया से निकलता है। ये आता है भाई कि भाई जहाँ जहाँ ये स्टोर्ड है, मेनली इट इज स्टोर्ड इन द एडिपोसाइट। इन वर्टिब्रेट the fat is actually deposited in the small droplet form in cytosol in a specialized cell that is called as adipocyte in adipose tissue. So it comes to that site and it attacks at ester bond. ये ester bond को ही break करता है of at first हमारे fatty acyl position पे and at third फैटी एसाइल पोजीशन पे, एंड लीविंग द रिमेनिंग पार्ट एज इट इज। तो ये इसने यहां से ये तोड़ा और एक ये तोड़ा, तो क्या होगा, ये दोनों जो फैटी एसिड अब यहां से रिमूव हो गए हैं वो एज इट इज जाते हैं जहां पे भी हमारे ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीडेशन होता है और फिर वहां से अपना एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड दिस लाइपेज लीविंग दिस द मोनो अनसैचुरेटेड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को विदाउट एनी डिग्रेडेशन एज इट इज छोड़ देता है और ये हमारे गट में एज इट इज एब्जॉर्ब हो जाता है। तो दिस एक्चुअली द मैकेनिज्म बिहाइंड द breakage of the triacyl glycerol via lipase enzyme. ये तो हमने बात की कि कैसे हमें एनर्जी मिलती है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। नाउ देयर इज आल्सो वन बेनिफिट अबाउट द स्टोरेज लिपिड, कि क्यों लिपिड को ही एज स्टोरेज मेटाबॉलिक फ्यूल की तरह यूज होता है एज स्टोरेज लिपिड
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लिपिड्स ही क्यों यूज होते हैं, तो देयर इज वेरी टेक्निकल आंसर बिहाइंड इट। बिकॉज आप देख सकते हैं जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज हाईली पोलर, उसमें बहुत सारे आपको वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं, एंड being a polar molecule it can easily react with water, एग्जैक्टली वाटर soluble भी होता है, बट हमारा ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है नॉन पोलर है एंड insoluble इन वाटर है। सो देयर इज नो नीड फॉर दिस मॉलिक्यूल टू कैरी एक्स्ट्रा वेट ऑफ वाटर, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भी बिना एक्स्ट्रा कोई वेट के कैरी किए डिपॉजिट हो सकता है, एंड इट कैन प्रोवाइड एनर्जी when it is required at the time of need. But in case of glucose, because it's polar in nature and carrying extra weight of water, that's why इसको कुछ हमारी वही है कि हमारी संरचना बहुत ही तरीके से की गई है कि ग्लूकोज को हमें क्विक सोर्स रखा गया, जबकि लिपिड हमारे अंदर एज डिपॉजिटेड फॉर्म में फ्यूल के तौर पे रहता है। जब भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तब इसका ऑक्सीडेशन होता है, सबसे प्राइमरी सोर्स इसको नहीं बनाया गया है। So this is actually about this that why it is the answer behind that why it is considered as the storage form of energy. Now in some animals, in fact in human beings also, it provides an इंसुलिन, मतलब स्टोरेज लिपिड तो है ही, स्टोरेज एनर्जी सोर्स तो है ही, इसके अलावा ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे लाइक जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेट उसमें जो रहते हैं एनिमल्स लाइक सील, वालरस, आपका वेल फिशेस वगैरह, उनमें इट प्रोवाइड्स एक्चुअली द इंसुलेटिंग एक आपको शील्ड प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इन अगर हम बात करें वी टॉक अबाउट द ओबीज पीपल, like no sorry to say obese, it's healthy people, maybe it may maintain a shield, insulating shield, it covers the body's core, and that's why it help in tolerating the low temperature for to them, because it actually heat को ये trap कर लेता है, तो ये इंसुलेशन का भी काम करता है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, द स्टोरेज लिपिड इन आवर बॉडी। Another storage lipid is formed by waxes. Waxes are nothing, they are the ester group of fatty acid, long chain fatty acid with long chain alcohol. यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, पामिटिक एसिड और 1-ट्राइएकोनटेनॉल से एक कंपाउंड बन रहा है, दिस इज द वैक्स दैट इज जॉइंड बाय एस्टर लिंकेज से ये जुड़ रहे होते हैं। सो वैक्सेस आर, आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा, वैक्सेस बहुत तरीके होते हैं, लाइक हमारे कान में से भी जो ईयर कैनाल में जो वैक्सी कंपाउंड निकलता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्स, बीज वैक्स। और इसके अलावा आपका कुछ अपने प्लांट्स में, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द कैलिट्रोपस प्रोसेरा, आँख जिसको कहते हैं आम बोल चाल में, एंड सेकेरम ऑफिसिनेरम जो कि शुगर केन, उसके भी इनकी सरफेस पे एक वाइट सा एक कुछ पदार्थ डिपॉजिट हो जाता है, वो भी वैक्स का ही एग्जाम्पल है। प्लांट्स हुए, मैंने अब हमारी भी बात की बीज के केस में। अब कुछ बर्ड्स में भी, बर्ड्स भाई अपना स्पेशली एक वाटरफाउल एक कैटेगरी है बर्ड्स की, जिसमें डक्स भी आते हैं। उसमें क्या होता है कि भाई ये पानी, क्योंकि डक्स पानी में भी फ्लोट करते हैं ऊपर सरफेस पे, तो ये क्या करते हैं कि इनकी प्रीन ग्लैंड होती है जो कि अपने फीदर्स को अपना वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर वाटर रेपेलेंट नहीं होगा तो वो उसके ऊपर फ्लोट नहीं कर पाएगा। तो प्रीन ग्लैंड से वैक्स रिलीज करते हैं जिससे कि इनकी फेदर्स अपने आराम से ऊपर वाटर सरफेस पे तैर पाए, जिससे भारी ना हो, डूब ना पाए। So this is about the waxes and exactly, so this is all about the triacylglycerol, storage lipid, triacylglycerol and waxes. Now moving to about one small point related to this fatty acid and the lipids. आपने देखा होगा कि when the अगर हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए कोई भी इस तरह का खाने का मटेरियल है जिस that contain oil or any other fat, तो कुछ टाइम बाद ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर,
ये उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। दैट, और कहते हैं कि भाई वो कंपाउंड जो फैट जो है वो दैट बिकम्स रेंसिड नाउ, रेंसिड फैट हो गया है अब। रेंसिड फैट इज नथिंग एक्चुअली, उसका जो कंपाउंड्स जो उस फैटी एसिड में जो बॉन्ड्स होते हैं दे गेट ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजनेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजनेशन। अब भाई ऐसे में क्या होता है कि शेल्फ लाइफ कम है, एग्जैक्टली हम बहुत देर तक उसको हम ऐसे ओपन नहीं रख सकते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, एक्सपायरी डेट हो जाती है ऑयल्स की। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, उसमें क्या किया जाता है कि ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा है पामिट ओलेइक एसिड का, जिसमें कि डबल बॉन्ड भी है। मेनली जो छेड़छाड़ होती है पार्शियल हाइड्रोजनेशन में वो इन डबल बॉन्डेड फैटी एसिड के साथ ही होती है। डबल बॉन्डेड फैटी एसिड की नाम से ही दिख रहा है कि भाई पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, दैट मीन्स यहाँ और यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा होगा, है ना। तो उससे क्या होता है कि भाई अनसैचुरेटेड को थोड़ा सा सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्दो इट्स एन अननेचुरल प्रोसेस, क्योंकि ये नेचुरली हम नहीं करना चाहिए, लेकिन काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, काफ़ी कंपनीज हैं जो कि अपने शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन फैट्स की थोड़ा भाई पार्शियल हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू उस फैट्स को निकालते हैं जिससे कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। यहाँ पे जोड़ तो देते हैं, ठीक है भाई, आइडियली मोटो यही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाना चाहिए, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है, ये हमारा मैंने बताया था क्योंकि सिस में था, सिस पैटर्न में होता है, दैट इज आपका ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों ही सेम साइड में है आइडियली, है ना। बट मोनो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में तो कन्वर्ट होता ही होता है, लेकिन अगर ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट अगर होता तो क्या होगा कि गलती से कुछ बॉन्ड्स वापस डबल बॉन्ड ही हो जाते हैं और ये सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ट्रांस फैटी एसिड्स जो होते हैं दे आर टोटली हार्मफुल for health because they actually helping in the deposition of bad cholesterol, that is LDL, low density lipoprotein वाले जो फैट होते हैं which are bad cholesterol, उनके डिपोजिशन में काम में हेल्प करते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि अल्टीमेटली कॉज कराते हैं आपका एथेरोस्क्लेरोसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस. That's why the trans fat is not good for us, and the process by which cis fat get converted into trans fat is called as partial hydrogenation. आपने एक और एग्जाम्पल में इसके बहुत ही आम तौर पे हम चिप्स वगैरह खाते हैं, लेज के चिप्स और भी ब्रांड्स के हम स्नैक्स खाते हैं जो पैक्ड रहते हैं, उनमें भी यही किया जाता है। इन द सेंस उनमें जो ये ऑक्सीजनेशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वो जो पैकेट होता है जब हम खोलते हैं तो देखते हैं आधा ही भरा हुआ है। आधा भरा हुआ होने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ऑक्सीजनेट ना हो पाए, भाई ऑयल में ही तले गए हैं सारी चीज़ें, तो ऑक्सीजनेट ना हो पाए तो उसमें एक इनर्ट गैस को डाला जाता है विद बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस को उसमें भर दिया जाता है, जिससे कि जो कि इनर्ट गैस है, जो कि उसमें जो प्रेजेंट फैट है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है और शेल्फ लाइफ उस तरह से उस चिप्स के पैकेट की बढ़ जाती है. So this is all about the storage lipid, waxes, triacylglycerol, partial hydrogenation, and the example of different fatty acid that I have discussed in the previous lecture and in today's lecture. If you like this video, please hit the like button, subscribe my channel और please last तक ज़रूर आप लोग देखा करें, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे मैं पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो इसको प्लीज़ लास्ट तक देखा करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे हम स्टार्ट करेंगे विद द स्ट्रक्चरल लिपिड के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।